नमस्कार बच्चों. Today we are going to start a new lesson, that is my childhood. This lesson is a part of book Beehive, lesson number 6, subject English, class 9th. In this lesson, actually this is not a lesson, this is an autobiography that is given by Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam wrote a book whose name was Wings of Fire, and that lesson is an extract from that book which was written by Dr. APJ Abdul Kalam. In this lesson we will come to know some incidents that are related to the childhood of Abdul Kalam, we can say that. Moreover, before to start this lesson, I would like to give you some additional information about Dr. APJ Abdul Kalam that is not a part of this lesson. If we go through the lesson without knowing about these facts, so it might be possible for you that you may have a little bit problem in understanding the text. So in my opinion, now we must start to know something about Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam's autobiography we are going to start. Dr. Kalam was born on 15th of October 1931 in a Tamil Muslim family of Rameswaram. Actually, Rameswaram is a town of India. Actually, it is an island also, that is an isolated part of India, and he was born there. He studied physics and aerospace engineering and became a scientist. Scientist ban gaye wo. He served the Defense Research and Development Organization for nearly 40 years. 4 decades mean 40 years he gave his services in this institution. He became the 11th President of India in 2002. And he is also known as Missile Man of India. Yes, this is the greatest achievement for him, that he is known as the Missile Man of India. And apart from this, Mr. Kalam, he was given Bharat Ratna, Padma Vibhushan and Padam Shri. 3 awards were assigned to him when he was alive, during his lifetime, during his time when he was giving his best service in the welfare of India. Then these 3 awards were given to him. And it was unfortunate that we lost that scientist in July 2015 due to a cardiac arrest while he was giving his lecture in an educational institute. We can say that there he got cardiac arrest and he died after 5 minutes of that in a hospital. So this was totally all about the autobiography of Dr. APJ Abdul Kalam. This is not the whole biography, this just one part of his biography, because we cannot cover this, because that contains a very long book about his biography. Now I am going to start the chapter. Now I request all the students to open the book and listen to me very carefully. This is our lesson, My Childhood. Before you read, some points have been given. Let's find out what they contain. Can you think of any scientists who have also been a statesman? Statesman means a man of high dignity. Dignity means respect. Okay. क्या आप कुछ ऐसे साइंटिस्ट्स के बारे में जानते हैं जिनकी डिग्निटी बहुत हाई रही हो, जिनकी डिग्निटी हाई होने की वजह से भी उनको जाना जाता हो? APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. Abdul Kalam had given his appreciable work in space, defense and nuclear technology. इन 3 जगह उसने अपना योगदान दिया और 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति वो बने. इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, उन्होंने एक बुक लिखी है अपने ऊपर ही जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर. He speaks of his childhood, in which he describes his childhood.
Number 1. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. Erstwhile means that was earlier known as Madras, now it is तमिल नाडु. चेन्नई का जो नाम था पहले मद्रास था, तो वहाँ रामेश्वरम टाउन में जो कि एक आइलैंड है वहाँ मेरा जन्म हुआ. इन अ तमिल फैमिली, तमिल मुस्लिम फैमिली, वी कैन से दैट, मुसलमान थे वो. माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ. ना तो वो बहुत अधिक पढ़े लिखे थे मेरे फादर और ना ही बहुत पैसे वाले थे, ठीक ठाक था. डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इन सब चीज़ों के बावजूद, इन सभी डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है डीमेरिट्स, इन सब कमियों की वजह से के बावजूद भी ही possessed great innate wisdom. He was very wise and a true generosity of spirit. वो बहुत ही बुद्धिमान और उदार दिल के इंसान थे. जनरसिटी का मतलब होता है उदारता. He had an ideal helpmate in my mother, आशिमा. मेरी मम्मी में उन्हें एक बहुत ही आइडियल, आदर्श जो है हेल्पमेट मिली. I do not recall the exact number of people she fed every day. मुझे ये तो नहीं है याद कि मेरी मम्मा रोज़ कितने लोगों को खाना खिलाती थी, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता. बट आई एम क्वाइट सर्टेन, बट आई एम वेरी श्योर दैट फार मोर आउटसाइडर्स ate with us than all the members of our own family put together. अगर हमारे परिवार के सभी लोगों को भी हम इकट्ठा कर लें तो उससे भी ज़्यादा लोगों को, जो कि बाहर के लोग थे, मेरी माताजी उनके लिए रोज़ खाना बनाती थी. शी वॉज अ वेरी काइंड लेडी. सेकेंड, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, ए शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक. अनडिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है कॉमन, अविशिष्ट, जो है भारी, एक प्रकार से हम कह सकते हैं लुक वाला बच्चा था मैं अपने परिवार में. बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जो लंबे और काफ़ी दिखने में सुंदर पेरेंट्स से मेरा जन्म हुआ था. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, अपने हम जो है पुराने मकान में रहते थे, जो हमारा, जिसमें जो हमारे पूर्वजों का था हमारा, ठीक है ना. एंसेस्ट्रल का मतलब होता है हमारा पूर्वजों का मकान, ठीक है ना. विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जिसको 19वीं शताब्दी के मिडल में बनाया गया था. इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम. रामेश्वरम जो टाउन था उसकी मॉस्क्यू स्ट्रीट में ये घर बना गया था. माई ऑस्टर फादर, मेरे ऑस्टर का मीनिंग लिखा गया है मितव्ययी, बहुत मीठा बोलने वाला, और वैसे बहुत मीठा लेकिन वैसे बहुत कठोर, मतलब अपने सिद्धांतवादी मेरे पिताजी जो थे. यूज टू अवॉइड ऑल इन इसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज, वो बेवजह जो बेफालतू के जो कंफर्ट और जो विलासिता थी, जो सुख था, सुख साधन थे, उनको वो अवॉइड करते थे. हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स. इनफैक्ट आई वुड से माइंड वॉज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड. मुझे सब कुछ मिला, मैं कहूँगा मेरा बचपन काफ़ी सिक्योर बचपन था, बोथ मेटेरियली, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी. मतलब मुझे प्यार भी मिला और कोई भी चीज़ जो आवश्यकता की थी, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, खाने से रिलेटेड हो या कोई दूसरी चीज़ हो, वो सब मेरे फादर मेरे को टाइम पे दे देते थे. नंबर 3, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर broke out in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand of tamarind seeds erupted in the market. कुछ कारणों से मैं समझ नहीं पाया कि अचानक से मार्केट में जो अरंडी के जो बीज थे उनकी डिमांड बढ़ गई. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Moscow Street. मैं भी उनको इकट्ठा करता था और एक दुकान पर बेच के आता था मॉस्को स्ट्रीट में. A day's collections would fetch me the princely sum of 1 आना, और एक दिन में मैं 1 आना कमा लेता था. 1 आना इज इक्वल टू ऑलमोस्ट
वी कैन से दैट 1 रुपये में 8 आने होते हैं, 50 पैसे में जो है 1 रुपये में होते हैं 16 आने, सॉरी। तो ये 1 आना, अब आप उसको देख लो कितने पैसे बनेंगे, आप समझ सकते हो, ठीक है ना। 1 आना इज इक्वल टू 6.25 पैसा। ओके, माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in दिनामणि। मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे जलालुद्दीन, वो मुझे बताते थे युद्ध के बारे में, जो युद्ध उन दिनों चल रहा था 1939 में स्टार्ट हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड नेक्स्ट डे आई कुड ईजिली assure myself about what happened the previous day with the help of newspaper whose name was Dinamani. Our area being isolated, that was very isolate means अलग था, क्योंकि रामेश्वरम is an island and काफ़ी दूर है, वो चेन्नई से आगे है। आइलैंड जो है वो मतलब भारत में है लेकिन भारत से अलग है। was completely unaffected by the war that had 0% effect of World War on it, but soon India was forced to join the allied forces and some things like a state of emergency was declared. लेकिन इंडिया को फोर्स किया गया कि वो अलाइड फोर्स को ज्वाइन करे और एक देश के अंदर एमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो गए। यहाँ पे अलाइड फोर्सेस का मतलब लिखा हुआ है द आर्मी ऑफ यूके, यूएसए एंड रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इन तीनों देशों की जो आर्मी जो मिल गई थी उसे अलाइड फोर्सेस का नाम दिया गया। The first casualty means effect came in the form of suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। पहला जो प्रभाव पड़ा वर्ल्ड वार का वो ये पड़ा कि रामेश्वरम स्टेशन के ऊपर ट्रेन रुकनी बंद हो गई। हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप। The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and धनुषकोटी और रामेश्वरम के बीच में जो ट्रेन चलती थी, फिर चलती हुई ट्रेन से न्यूज़पेपर बाहर फेंकने पड़ते थे। दैट फोर्स्ड माई कज़न शमशुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स। फिर मेरे भाई शमशुद्दीन जो कज़न ब्रदर था, उसको एक हेल्पर चाहिए था जो इन बंडल को कैच कर सके। एंड एज इफ़ नेचुरली, और जैसा कि स्वाभाविक था, आई फिल्ड द स्लॉट, मैंने इस खाली स्थान को भर दिया। मैंने एक हेल्पर की जो जगह खाली थी उसको भर दिया। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेग्स का मतलब होता है मजदूरी। उसने मेरी पहली मजदूरी कमाने में मेरी हेल्प की। हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील, 50 साल बाद आज भी मैं महसूस कर सकता हूँ द सर्ज ऑफ प्राइड, उस गर्व भरी बात को जो मैंने पैसे कमाए थे ना। जो पहली कमाई जब भी हम कमाते हैं तो काफ़ी अच्छा हमें महसूस होता है। माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, जो मैंने पहली बार कमाए थे। एवरी चाइल्ड इज़ बोर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ना कुछ अनुवांशिक गुणों के साथ हर बच्चे का जन्म होता है। पेरेंट्स के गुण उसमें पाए जाते हैं। इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, एक सामाजिक, आर्थिक और भावुक, एक कहते हैं इमोशनल का मतलब क्या होता है, भावनाओं से जुड़े हुए इस एनवायरनमेंट के अंदर। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और फिर वह ट्रेंड होता है, उसका लालन पालन होता है परिवार की जो भी दिशाएं होती हैं, जो भी गुण होते हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके साथ। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर से मैंने जो है डिसिप्लिन और ईमानदारी सीखी। और मेरी मदर से आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, भलाई में विश्वास रखना। एंड हेल्प डीप काइंडनेस, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और यही मेरे 3 भाइयों और मेरी बहनों में भी थी। हम 5 भाई बहन थे। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, 3 बचपन के दोस्त भी थे मेरे, काफ़ी क्लोज थे। रामानंदा शास्त्री जो कि हिंदू था, अरविंदन और शिव प्रकाशन, ये तीनों हिंदू थे। एंड आई वॉज मुस्लिम। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज़, ये सभी जो है हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे।
As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringings. हालांकि हम चारों दोस्तों ने हमारे अंदर कभी किसी प्रकार का धार्मिक भेदभाव महसूस नहीं किया और ना ही हमारे पालन पोषण में ऐसा कुछ हुआ. इनफैक्ट रामानंदा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पाक्षी, लक्ष्मणा शास्त्री का बेटा था वो, जो कि दैट वाज द हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल एट द टाइम. लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर. बाद में रामानंदा शास्त्री ने अपने पिताजी का काम अपने हाथ ले लिया. अरविंदन जो था, ही वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स. आने वाले जो तीर्थ यात्री थे उनके लिए वो क्या करता था, ट्रांसपोर्ट का प्रबंध करने लग गया. एंड शिव प्रकाशन जो था, ही बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवे. साउदर्न रेलवे में वो एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया. ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी, उनका एक प्रोग्राम था, मतलब एक त्यौहार था, साल में एक बार मनाते थे सीताराम की शादी का. आर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स. का मतलब होता है मूर्तियाँ ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट. हमारे परिवार के लोग नावों से उन मूर्तियों को ले जाने के लिए का प्रबंध करते थे. सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्था विच वॉज नियर आर हाउस. Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. राम और पैगंबर की कहानियाँ हमारी दादी और मेरी मम्मी हमें सुनाती थी रात के टाइम पे. So this is enough for today students. Rest of the lesson will be completed in next video. Thank you. Have a good day.